So, as I was taking eigenvalues and eigenvectors, so maximum problems we solved, properties also we solved. Today, the last day for this topic. From tomorrow onwards, I will start the new topic. Remember, this eigenvalues and eigenvector is very, very, very important. Actually, matrices is generally 99% you will get 1 or 2 marks from it, and out of which most of the times you will get eigenvalues and eigenvector topic. And almost all problems from GATE exams of all branches from 93 to 2019, I solved all the problems. But I left a few problems which are, very difficult. So such problems, after completing everything, I will give you as the homework. Let me see how many we can solve it. Afterwards, I will solve such problems. And from tomorrow onwards, we shall go for new topic, and rest of the topics are very small. Cayley-Hamilton's theorem, rank of the matrix, Cayley-Hamilton theorem, rank of the matrix. All these things are, within 1 day, 2 days, like this you can complete. So next 10 days, the whole matrices will be over. So we can go for next topic, or some other teacher will take that topic, and I will continue aptitude. So please, once again, I will tell you, you people are neglecting. दोपहर में कोई भी नहीं आता एप्टीट्यूड क्लास में. अब 34-35 सुबह में रहते, फिर बाद में धीरे धीरे कम होते जाते, फिर चले जाते. Such interest is harmful for you people only. आपको याद रखो, ऐसे ही पढ़ना है. It is not sure that when the things will come to normal and when we are going to start chalk and talk classes. Maybe possible that your next whole semester will be like this only. SOM, FM, you have to learn like this only. Therefore, please don't neglect, and you don't have any work now, and it is the best time to prepare for GATE, and I am taking maximum pain to solve each and every problem. I don't know why you people are missing. If any problem is there in the afternoon, you talk with me regarding timing. We will make it morning itself, or we will make in the evening itself. So that if it is, a summer problem or any heat problem, some problem is there, so you tell me. But don't miss the classes. Whatever the things I am teaching, maintain those notes. You repeat and repeat, practice it. If you show the interest, more problems I will give you for homework. The thing is, you have to show the interest. Okay. So now we shall go to the next studies problem. Has anybody solved the studies problem? Has anybody solved the studies problem? That is ratio problem. Please check it. रेशियो प्रॉब्लम. देखिए, आप 30-35 बच्चे सुबह रहते, फिर दोपहर में सब चले जा रहे तुम लोग. '51 is over, '53 is over. Each and every problem I am taking from all, and all top of notes I am taking. Okay, this problem was there. I think, no, not this one. Yes, this problem. The two eigenvalues of this matrix have a ratio of 3:1 for p is equal to 2. It means that when you take p is equal to 2 here in this matrix, whatever the eigenvalues you will get, their ratio is 3:1. Their ratio is 3:1. What he wants is one more region. What is the another value of p for which the eigenvalues have the same ratio 3:1? मतलब दोनों केसेस में तो ये रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 ही होना चाहिए. किसका? ईजन वैल्यूज का. पी के वैल्यू, एक वैल्यू के लिए ईजन वैल्यू किस रेशियो में है? 3:1 में. लेकिन अगर से एक और हम वैल्यू लेंगे पी का, वो वैल्यू हमको नहीं पता, उसके लिए भी रेशियो 3:1 ही होना चाहिए.
उसके लिए भी रेशियो 3:1 ही होना चाहिए। तो वो कौन सा वैल्यू है पी का, वो हमको निकालना है। फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन यू, सो दिस यू हैव टू सॉल्व इन डिटेल। आई विल टेल यू। लेट अस अज्यूम दैट two Eigen values are alpha and beta. Assume that two Eigen values for which the ratio is going to be 3:1 is alpha and beta. It is given that they are in the ratio 3:1, means alpha is equal to 3 beta. Alpha is equal to 3 beta or beta is equal to 3 alpha. Anything you can take. It is not mentioned that this is more, this is less. So one is more, another is less. You can take alpha is to beta is equal to 3:1. Therefore, alpha is greater. So alpha is 3 times the beta. This is equation 1. Followed here? As they are in the ratio 3:1, therefore alpha is equal to 3 beta. है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, ये आपका पहला इक्वेशन आया। ये आपका पहला इक्वेशन आया। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों ईजन वैल्यूज है। ईजन वैल्यूज को ऐड करें तो किसके बराबर होना चाहिए? ट्रेस के बराबर होना चाहिए। ट्रेस क्या है यहाँ पर? p+2 है। तो ईजन वैल्यूज ही दोनों को ऐड करें तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस पी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस पी, क्योंकि अल्फा और बीटा ईजन वैल्यूज है, 2 प्लस पी रेशियो है। तो 3 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा है। 3 बीटा सब्स्टिट्यूट करो इसमें। 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस पी। Therefore 4 beta is equal to 2 plus p. This is equation 2. 4 beta is equal to 2 plus p. ये दोनों इक्वेशन कैसा है देखो, एक तो रेशियोज में है इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा लिए हम, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, इफ यू ऐड बोथ दीज दैट शुड बी इक्वल टू द ट्रेस। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस पी और 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस पी एंड 4 बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस बी। दिस इज इक्वेशन, this is equation 2, this is equation 1, this is equation 2. And one more property we are having, that is product of the Eigen values is equal to determinant of the matrix. Product of the Eigen values is equal to determinant of the matrix. So determinant of this matrix is 2 into p minus 1. So 2 into p minus 1, and this is equal to product of the Eigen values. So one more condition we'll get, that is alpha into beta is equal to 2p minus 1. Alpha into beta is equal to 2p minus 1, but alpha is equal to 3 beta. इसमें सब्स्टिट्यूट करो। So 3 beta into beta is equal to 2p minus 1. 3 beta square is equal to 2p minus 1. 3 beta square is equal to 2p minus 1. लेकिन इक्वेशन 2 से p क्या हो जाता? 4 बीटा माइनस 2 होता। वो 3 में सब्स्टिट्यूट करो। 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 4 बीटा माइनस 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर से आप सॉल्व करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के फॉर्मूले से, तो ये दो वैल्यूज आपके आएंगे। एक तो ऑलरेडी 2 हमको मालूम है p का वैल्यू, दूसरा वैल्यू बनेगा 14/3। सो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। प्लीज गो थ्रू द आंसर वंस अगेन। Please go through the answer once again. और देखो एक बार, कुछ डाउट है तो चार्ट बॉक्स में पूछो। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा हटके रहता, थोड़ा हटके है। रेशियो दिया आपको, सब कंफ्यूज करने आता, वही दो प्रॉपर्टी आपको यूज करने हैं। सम ऑफ द ईजन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ द ईजन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ द ईजन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। यही दो वैल्यूज आपको यूज करना है। दो वैल्यूज यूज करके, कंडीशन यूज करके सॉल्व करना है। तो बीटा के दो वैल्यूज आते हैं 2 and 14/3। 2 as already it is given value of p is 2, so the next value is 14/3. The answer is 14/3d। 14/3d। Please take down this question, आंसर लिख लो। So please once again I request you, don't neglect the things। आपको इसी सिस्टम को फॉलो करना है, ऐसा ही पढ़ना है, आपको डिग्री मिल जाएगी। देखिए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए विदाउट एनी एफर्ट, हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो, लेकिन वो डिग्री किसी काम को नहीं आएगी अगर से आपके पास नॉलेज नहीं है। यू हैव टू क्रैक द एनी वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू पीपल आर नेग्लेक्टिंग। I am taking so much pain by referring so many videos, books, everything, finding shortcut methods.
आपको बताने जा रहा हूं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी. If such is the situation, I am not going to teach you. So beta is equal to 2 and beta is equal to 14 by 3. I hope you have taken and understood also. If you have any doubts still, Snail, if you have any doubts regarding ratio, all these things you can ask. And please be Yes, in sir. touch with me. Boys तो कोई बात ही नहीं करते आप लोग. WhatsApp मैसेज भेजो या फोन करो, देखो क्या समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा, so that I can also improvise. Next question. The value of P, take down question please. The value of P such that the vector 1, 2, 3 is an eigenvector of the given matrix 4, 1, 2, P 2, 1, 14 minus 4, 10. This carries 2 marks. Options have been not given to, options has been not given to you, so you have to do it yourself. देखिए इधर द वैल्यू ऑफ P का क्या वैल्यू बनेगा, P यहाँ पर है, P का क्या वैल्यू बनेगा सो दैट इसका इजन वेक्टर A आएगा 1, 2, 3. टेक योर टाइम प्लीज. और थोड़ा हिंट देता हूं मैं आपको. देखिए कंडीशन यूज करो, A इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स, ये वाला A इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स. तो A आप गिवन मैट्रिक्स लिखो 4, 1, 2, P 2, 1, 14 minus 4, 10. x तो आपको इजन वेक्टर दिए सो है, लैम्बडा हमको नहीं मालूम, तो लैम्बडा वैसे ही लिखो, 1, 2, 3 लिखो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो और P का वैल्यू निकालो. ट्राई इट प्लीज. I want the value of P such that the vector 1, 2, 3 is an eigenvector of the given matrix. Eigenvector of the given matrix. Please do it. Take your time. And all the students who are present now, I will note down them. Suppose if you are absent in the afternoon, I will inform your parents. Please, with interest, you learn the things, and especially aptitude. Again and again, I am telling you. And you are very lucky that you got maximum time now. So this whole year, you read each and every problem, every topic of mathematics, English, and numerical aptitude. अगर से आप इतना परफेक्ट करें तो आप गेट 100% क्वालिफाई हो जाते हैं. 100% बोल रहा हूं मैं मिनिमम, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है. आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना करें तो 30 में 20 तो 100% आते हैं एवरेज स्टूडेंट को भी. And tell me, yes, somebody says the value. What is the value of P? Value of P is -5. Snail is saying -5. करो प्लीज सभी लोग. Only 5, sir. Only 5. Only 5. Okay. Only 5. Okay. +5. She is saying +5. Others करो. आपको कंडीशन दिया हूं मैं. Ax is equal to lambda into x. Remember in this definition, A is given square matrix. X is eigenvector, lambda is the eigenvalue, x is again eigenvector. You substitute all these values. इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो. And tell me the answer. 17. Theta is saying 17. Take your time, please. 17. Mansi is also saying 17. आप मल्टीप्लाई करो इसको. 4 into 1 plus 1 into 2 plus 2 into 3. Then P into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 3. 14 into 1 minus 4 into 2 plus 30. तो इधर इस तरह ले लो, इधर इस तरह ले लो. 17 हो रहा दे. देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आता 12 plus 7 plus P plus 36 is equal to lambda 1, 2, 3. लैम्बडा 1, 2, 3. तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, तो लैम्बडा मिल जाता आपको 12 और सेकंड को ऐड करें तो यू विल गेट 7 plus P is equal to 2 lambda and lambda is 12
So when you substitute value of lambda 12, so you will get P is equal to 17 is the right answer. P is equal to 17 is the right answer. लिख लो जल्दी जिसको नहीं आया. जिसको नहीं आया प्लीज लिख लो. अब खुद करो. This is the 56th problem, and today I will stop this topic. From tomorrow onwards, we shall move for new topic. Once again, I am requesting you, please, if you have any doubts, if you have any problem in attending the afternoon classes, please inform me. Please inform me so that I will arrange some extra other time. But you please attend it. And once again, I will tell you, I am having maximum material for you people for numerical and mathematics and English. All notes of ACE Academy made easy, different books, different notes, handwritten notes, everything I am having. And each and every problem I am taking from all these good institutions. So it is very, you people are very lucky. घर में बैठ के आपको कहीं मगर गए आपको each and everything we are teaching. आपको घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई. तो प्लीज ये जरूरी है. आप अभी छोटे हैं, आपको मालूम नहीं हो रहा. आप समझ रहे हैं मैं बीटेक में एडमिशन लिया, मुझे बीटेक की सर्टिफिकेट मिल गई, बस हो गया. ऐसा है नहीं. मेरे बात को आप अच्छी तरह समझो. आपको नॉलेज आना जरूरी है. इसी के ऊपर आप अपना करियर बना सकते. और यहाँ कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है. याद रखो, कैसे कैसे एवरेज बच्चा अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे. कभी किसी दिन मैं आपको कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते बीटेक के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिगार्डिंग दैट वी विल एक बार जूम मीटिंग करेंगे. मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसा पढ़ना है. अभी से आप स्टार्ट करो. यू हैव सर्टेन एम. कोई भी एग्जाम का एम रखो और उस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है करते जाओ. और याद रखो, एप्टीट्यूड तो आपको हर एग्जाम में आने वाला है. आप सिविल सर्विसेज लिखो, आईएएस लिखो, बैंकिंग लिखो, कॉर्पोरेट लिखो, सेबी लिखो. बैंकिंग में तो मैक्सिमम एप्टीट्यूड की बल के ऊपर आप नौकरी मिल सकता है आपको. और एप्टीट्यूड की क्लास अटेंड नहीं करते आप. अब मैं शॉर्ट मेथड्स ढूंढ के आपको पढ़ा रहा हूं. नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इजी, एवरीबॉडी कैन डू इट. प्लीज डू इट. द सम ऑफ इवन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम इज वेयर. ये वैल्यूज है 215, 650, 795, 655, 150, 835, 485, 355, 550. These are the element of the matrix. यहाँ पर आपको रीजन वैल्यूज का सम निकालना है. प्लीज बताइए. ऐसे प्रॉब्लम्स आप 1 सेकंड में करना. याद रखो, गेट एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए कैलकुलेटर आप यूज करके भी कर सकते. बट इन सर्टेन एग्जाम्स कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. वेरी गुड. 915 सूरज. ऑप्शन ए स्नेहल. यस ए. वेरी गुड. बहुत से लोग करे. यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द इवन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस मींस यू ऐड ऑल दीस थ्री, है ना. यू ऐड ऑल दीस थिंग्स. करो प्लीज. निकिता भागवत, संकेत. ओके गुड. करो सभी लोग. यहाँ पर सम ऑफ द इवन वैल्यूज पूछ रहा. सम ऑफ द इवन वैल्यूज इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस मतलब आप इन तीनों को ऐड करो. दैट इज 215 प्लस 150 प्लस 550. ये तीनों ऐड करो आप. ऐड करो तीनों भी. मैं भी करके देखता हूँ. छोड़ो. तो इट इज 215 प्लस 150 प्लस 550 and this is 915. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good. Mali, Samadhan Rao. At least you people show interest. जो easy है वो तो करो. देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर कोई ब्रिलियंट नहीं है. आपको हर चीज आना जरूरी नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता. गेट एग्जाम है, अभी तो कोई 100 से 100 लिया ही नहीं. आपको हर चीज नहीं आ सकता. आपको करना क्या है, आपको टाइम है आपके पास. आप डिटेल में हर टॉपिक को कितना हो सकते उतना डिटेल में, क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट इस वक्त पढ़ने के स्थिति में नहीं है. तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स पूरा नहीं पढ़ सकते आप. अभी आपको प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल पढ़ाना है तो मुझे बेसिक प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल बताना पड़ेगा आपको. उसके बाद ही मैथमेटिक्स कर सकते हैं आप.
तो आप करने के 4 चैप्टर मैथ्स के कर सकते हैं अभी 6 महीने तक, और एप्टीट्यूड पूरा कर सकते, इंग्लिश पूरा कर सकते। इन टॉपिक्स को आप बार 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 प्रैक्टिस करो। इतनी प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूं मैं चाहे तो 2-4 प्रॉब्लम करके 1-2 प्रॉपर्टी बता के खत्म हुआ बोल सकता था। आई एम टेकिंग सो मच पेन एंड यू पीपल आर नॉट एट ऑल शोइंग इंटरेस्ट। ओके, one of the eigenvectors of the matrix -5, 2, -9, 6 is, 4 options have been given to you. Find the eigenvectors of this matrix -5, 2, -9, 6. पहले आप ईजन वैल्यू निकालो, उसके बाद 2 केसेस को ईजन वेक्टर निकालो। दिस इज लेंथी क्वेश्चन, लेकिन फास्ट करे तो 3 मिनट में हो सकता। करो प्लीज। और इसमें से एक ईजन वेक्टर कौन सा है वो मुझे आप बताओ। एक ईजन वेक्टर कौन सा है वो मुझे आप बताओ। करो, पर ईजन वैल्यूज निकालो। -5 माइनस लैम्डा, 6 माइनस लैम्डा। ईजन वैल्यूज आर 4 एंड -3। ईजन वैल्यूज आर 4 एंड -3। ओके, अब ईजन वेक्टर निकालो करस्पॉन्डिंग टू 4, करस्पॉन्डिंग टू -3। ईजन वेक्टर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं एक बार और, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके। ईजन वैल्यू, ईजन वेक्टर कैसा निकालना मैं बाद में आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके बताता हूं, अगर से आप फर्स्ट सेम में नहीं सीखे। ओके, ठीक है। ईजन वैल्यूज, बट ही इज आस्किंग ईजन वेक्टर। प्लीज फाइंड ईजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दीस टू वैल्यूज, और उसमें से एक कौन सा ऑप्शन है वो देखो आप। और आप अपने डिफिकल्टीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे साथ डिस्कस करो, मुझे बताओ। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट मीट ईच अदर, लेकिन आप मुझे पहचानते होंगे, कॉलेज में देखे होंगे कभी। सी सेक्शन वालों को तो मैं पढ़ा चुका हूं मैकेनिक्स, दे नो मी वेरी वेल। One of the eigenvectors is okay. 4 and -3 eigenvalues you got, but now you get eigenvectors for 4, eigenvectors for -3, and check that इसमें से कौन सा वो है। कुछ ऐसा है आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज 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 डोंट हेजिटेट, आई विल ऑलवेज रेडी टू सॉल्व। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत से लोग आपके दोस्त जो अभी भी नहीं आ रहे उनको भी बोलो, आपका बैक है, आप वीक है, आपको मैथ्स नहीं आता, ये सब जरूरत नहीं है। यहाँ पर ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे प्रॉब्लम नहीं करने हैं आपको, शॉर्टकट मेथड ढूंढना है, इजी वे में सॉल्व करना है। संकेत इज सेइंग ऑप्शन डी। संकेत, हैव यू फाउंड? प्रियंका इज आल्सो सेइंग सी, डी। ओके, आपको पहले वैल्यू ईजन वेक्टर निकालने के लेंथी में प्रोसीजर भी सीख लो, फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फॉर थर्ड ऑर्डर। सेकंड और थर्ड ऑर्डर दोनों के लिए आप निकालना सीख लो। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन डी, बट आई डोंट हैव द आंसर। प्लीज चेक कर लो, आप नहीं आता तो घर में चेक कर लो। यहां क्या बोलता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए, और हमेशा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िए आप। अब तो खैर आपको कोई टेंशन है एग्जाम का, आप क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए एग्जाम में। क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आने के बाद ही आप आंसर कर सकते। तो पढ़ाई कैसे करनी है मैं आपको गेट की फिर बताता हूँ। सेकेंड ईयर में आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट करो, पूरा परफेक्ट करो, आप किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं हूं यहाँ पर, मेरे पास पूरे मटेरियल्स हैं इस तीनों के, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। आपको मैं परफेक्ट करा दूंगा ये 3। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए बाहर के टीचर आएंगे, हमारे टीचर भी रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे। साइमल्टेनियसली आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका प्रिपेयर करते जाओ। हाँ, उसके बाद आप थर्ड ईयर कंप्लीट होते रेडी रहना, आपकी तैयारी पूरी रेडी रहना। फाइनल में आप सिर्फ टेस्ट लिखते जाना, मॉक टेस्ट खरीद लेना, सीरीज एक के बाद एक टेस्ट प्रैक्टिस करते जाना, तो आपको गेट एग्जाम में डायरेक्टली कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करें तो ही गेट एग्जाम को जाना तो इजी होता। नहीं तो आपका एक एक्सपीरियंस एग्जाम को समझने में ही चले जाता कैसा अटेम्प्ट करना। ओके, नाउ टेक डाउन दिस क्वेश्चन। अ सिस्टम मैट्रिक्स इज गिवन एज फॉलोज: A is equal to 0, 1, -1, -6, -11, 6, -6, -11, 5. The absolute value of the
Absolute means it should be positive only. The absolute value of the ratio of the maximum eigenvalue to the minimum eigenvalue. ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया, करना कुछ है नहीं आपको, इसके इजन वैल्यूज फाइंड आउट करो और जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड करो, माइनस भी आया तो प्लस ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा और वो रेशियो कितना है बताओ मुझे. Once again I am telling you what you have to do is you have to find the eigenvalues, method I have shown here, or after finding the eigenvalues get the maximum eigenvalue and again select the minimum value, divide the maximum eigenvalue by minimum eigenvalue and tell me what is that particular answer. What is that particular answer? Please do it. What is the ratio? First to find the eigenvalues and tell me what are the eigenvalues. What are the eigenvalues? Then you get maximum eigenvalue, minimum eigenvalue. ओके मानसी, राइट. मैक्सिमम और मिनिमम ले लो, डिवाइड करो, रेशियो इज राइट. वेरी गुड. स्नेहल इज आल्सो राइट. These are region values. You find ratio. देखिए सिर्फ आप फाइंड आउट करें तो नहीं चलता, क्वेश्चन में क्या पूछना ये बहुत जरूरी है. यहाँ पर आपको रीजन वैल्यूज करेक्ट भी है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज डूइंग. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो आप. व्हाट ही इज आस्किंग हियर, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम रीजन वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू. जो सबसे बड़ा है वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में ले लो, सबसे छोटा नीचे ले लो, डिवाइड करो और वो रेशियो बताओ कितना है. वो रेशियो बताओ कितना है. 1:3 or 3:1? Yes, 3:1 it is, because maximum we are taking upwards in the numerator, therefore it should be 3:1 ratio. Yes, 3:1. Yes, 3:1. देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर किया हूं मैं, ये कुछ आता है, इसके वैल्यूज आ रहे हैं, मेरे गलत भी हो सकते हैं, मैं शायद गलत किया होगा, आप लोग करेक्ट करें तो मेरे आंसर गलत भी हो सकते हैं, बट रेशियो 3:1 इज राइट आंसर. रेशियो 3:1 इज सर तिथं -1 -2 -3 येतंय. हाँ ओके, मेरा गलत है ऑफ कोर्स. आई एम रॉन्ग हियर बिकॉज जस्ट लिया -1 -2 -3 अगर से आपके सही है तो सही है, बट रेशियो 3 आता. रेशियो 3 येणार. रेशियो 3 येणार. हे क्वेश्चन लिहून घ्या. क्वेश्चन लिहून ब्रेक होत आहे नंतर या पास में. A real 4x4 matrix A satisfies the equation A square is equal to I, where I is the identity matrix. Identity matrix means unit matrix. The positive eigenvalue of A is. लिख लो, क्वेश्चन लिख लो और ट्राई करो ब्रेक में. A real 4x4 matrix A real 4x4 matrix A satisfies the equation A square is equal to I, where I is the identity matrix. The positive eigenvalue of A is, this carries 2 marks. This carries 2 marks. A real value 4x4 matrix A satisfies the equation A square is equal to I, where I is the identity matrix. The positive eigenvalue of A is. क्वेश्चन को लिख लो और ट्राई करो ब्रेक में. एक रियल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4x4 है, याद रखो. और कंडीशन क्या दिया उन्होंने? सेटिस्फेक्शन A स्क्वायर इज इक्वल टू I दिया. तो पॉजिटिव इजन वैल्यू कौन सा बनेगा? आपको पॉजिटिव इजन वैल्यू कौन सा बनेगा? आपको ये निकालना है, A का इजन वैल्यू निकालना है.
और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया, और ब्रेक के बाद 5 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाओ। एग्जैक्टली 5 मिनट्स टाइम दूंगा मैं आपको, उसके बाद फिर ज्वाइन हो जाओ। सर हाँ सर प्रीवियस क्वेश्चन की रेशियो 3:1 है या 1:3?